The group of autotrophic living organism having eukaryotic cell with cell wall is the group of plant. Now here the group of autotrophic living organism having eukaryotic cell with cell wall. ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑटोट्रॉफिक भी है, जिसमें यूकैरियोटिक सेल भी है और सेल वॉल भी है? तो वो है प्लांट्स. ओके, ऑटोट्रॉफिक यानी जो खुद खाना बनाता है, यूकैरियोटिक यानी जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है और जिसमें सेल वॉल भी है. ये ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स. Plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. अभी प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल है और ये क्लोरोफिल होने के वजह से वो अपना खाना स्वयं बनाता है और उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इस पृथ्वी पे किंगडम प्लांटे ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अनेक अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पे उनका खाने का स्रोत है, उस खाने का स्रोत है, या इट इज द सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिज्म. Now, here in this picture, if you see, there are number of trees, there are number of plants. Some are small, some are huge, some are medium size, and some are climbers. जो कुछ झाड़ छोटे छोटे होते हैं उसको हर्ब्स बोला जाता है, जैसे तुलसी है या और छोटे छोटे जो ऑनियन ट्रीज है, ऑनियन प्लांट्स है सॉरी, वो सारे हर्ब्स में आते हैं. Shrubs which is like 5 to 6 feet height में होते हैं. Trees बड़े बड़े होते हैं जैसे नीम ट्री है, बनियान है, मैंगो ट्रीज आर, सो ये दे आर वेरी ह्यूज इन साइज, हाइट. सो ये ट्रीज होते हैं. कुछ पौधे किसी का सपोर्ट लेके वो आगे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लाइक मनी प्लांट, सो उनको क्लाइंबर्स कहते हैं. सम आर ऑन ग्राउंड, उसको क्रीपर कहते हैं. सो ये सारे जो वनस्पति है या जो प्लांट्स है उसको अलग अलग उसका विभाजन किया है, उसका वर्गीकरण किया है और उसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. सो लेट्स सी व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. नाउ हियर यू विल हैव अ क्वेश्चन, इज क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट? क्या ये वर्गीकरण, ये एक क्लासिफिकेशन सही में इतना महत्व का है? और उसका आंसर है यस, क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स स्टडी इजियर. और इन अदर वर्ड्स, क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म into groups or subgroups depending on the similarity or dissimilarity among the organism. ओके, ये जो हमको अगर कुछ चीज़ों का अगर पढ़ाई करना है या पढ़ना है, उसके बारे में हमको मालूम करना है, तो उसको अलग अलग ग्रुप में डाल के अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारी पढ़ाई क्या होती है, आसान होती है. नाउ हियर वी हैव अगेन अ स्मॉल वीडियो on the plant kingdom. Welcome to a new Happy Learning video. Today we're going to learn about the importance of plants, their main characteristics and also the classification. Presenting the plant kingdom. You already know that plants can't move from one place to another. As you can see, the great majority are held to the ground by roots. But they fulfill the vital functions of all living things. They are born,
They grow, they interact, reproduce, and die. As you can see in these images, there are many types of plants. But do you know how many types there are? Well, according to scientists, there are approximately 9 million different species. Some are gigantic like this tree, capable of producing shade for 100 people at the same time. Others are tiny, like this minuscule flower. But although they may be different, they all have something in common. They are capable of making their own food. Plants don't feed off other living creatures like animals do. But they make their own food thanks to photosynthesis, process that transforms sunlight and inorganic matter in their surrounding into food. Photosynthesis is super important for plants, but for all living things too, because in that process they release oxygen into the world. And without oxygen, none of us would be here today watching this video. Are plants important or what? Plants were one of the first forms of life that appeared on Earth, thanks to their capacity not to depend on other living creatures to survive. Their most predominant colour is green, and this colour is called chlorophyll, an essential substance to perform photosynthesis. Plant classification. As we said, there are many types of plants, and we can classify them in 4 large groups to get to know them better. Algae, mosses, ferns, and phanerogams. Algae don't have roots, stems, or leaves. They live in water, both the rivers and seas, and they are the simplest plants. Mosses are also very simple plants. They live on solid ground, but need a lot of humidity. They don't have roots to absorb water because they live in very humid and bleak places. Ferns are higher plants, and their body is divided into roots, which is where they absorb water from the soil, stem, which is where the water circulates, and leaves that grow upwards from the stem. Ferns also live in humid places. Phanerogams, despite their name, are the most common plants because they reproduce through their flowers. They are higher plants, and their bodies are divided into roots, stem, and leaves. Trees are an example that belongs to this group. Well, now we know a bit more about plants and their importance towards all other living things. So you know that we need to take care of them and respect them. Goodbye friends, and don't forget to subscribe to Happy Learning TV. Okay, so for basis of classification, on what criteria the classification of plant is done, that is mentioned in your textbook, that is on page number 75. The first criteria is the presence or absence of organs in the first criteria for classification of plant. So what is the organs? That organs are root, stem, leaves,
branches, flowers. These are the various organs of the plant. On that basis, the first criteria has been done. The second one is the presence or absence of separate conducting tissue for conduction of water and food is the next consideration for classification. So, conducting tissue are of two types, that is called xylem and phloem. Now, whatever the food or water is present in the soil, these conducting tissue they absorb. जैसे हम सबको पता है जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली दे ग्रो इन सॉइल, मिट्टी में या ज़मीन में वो ग्रो होते हैं, और जो भी खाना या पानी जो वनस्पति के लिए आवश्यक है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा? कंडक्टिंग टिश्यू। वो कंडक्टिंग टिश्यू क्या करते हैं? वो पानी को या वो वाटर फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। फूड मीन्स मिनरल्स एंड other elements are there. So उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। So यहाँ पे दो जो कंडक्टिंग टिश्यू है जैसे जाइलम है और फ्लोएम है, तो जाइलम क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है और फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्लोएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। द थर्ड क्राइटेरिया इज डू द प्लांट्स बियर सीड्स। क्या उस प्लांट में सीड्स आते हैं क्या? अगर आते हैं तो वो कैसे है? वो सीड्स बाहर से दिखते हैं या अंदर में है? तो सीड्स आर एनक्लोज मीन्स वो अंदर है या सीड्स आर आउटसाइड। सो ऑन दैट बेसिस वो एक थर्ड क्राइटेरिया रखा है। चौथा क्राइटेरिया है कि अगर सीड आते हैं तो वो सीड का नंबर क्या है। वैसे तो हमने काफी सारे सीड्स देखे हैं, बट सीड सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। मीन्स जब हम वो बीज को अगर बीज में से उसको सेपरेट करते हैं तो कुछ बीजे सेपरेट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सो जो सेपरेट होते हैं उसको डाइकोटिलेडॉन बोला गया है और जो नहीं होते हैं उसको मोनोकोटिलेडॉन बोला गया है। अभी यहाँ हम देखते हैं कि किंगडम प्लांटी, ये जो किंगडम है इसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया है। तो पहला है फेनोरोगैम्स और सेकंड है क्रिप्टोगैम। फिनोरोगैम्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। जितने फूल वाले जो प्लांट्स है, पौधे हैं, वो सारे फिनोरोगैम्स में है। एंड अनदर ग्रुप इज क्रिप्टोगैम जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। आपने भी देखा होगा कि कई झाड़ों में फूल आते हैं और कई झाड़ों में फूल नहीं आते। तो जो फूलों वाला झाड़ होता है वो फिनोरोगैम्स में आता है और जिसमें फूल नहीं होते हैं वो क्रिप्टोगैम्स होता है। अभी ये फिनोरोगैम ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मीन्स जहाँ पे सीड्स ओपन होती है ना, हमको बाहर से फ्रूट के बाहर में ही जो सीड्स होती है वो होती है जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म मीन्स, एंजियो मीन्स क्लोज सीड, उसकी सीड अंदर के साइड में होती है, फ्रूट के अंदर। जब तक हम वो फ्रूट को खोलते नहीं है हमको सीड नहीं देखने मिलती है। ये एंजियोस्पर्म जो है that is again divided into two groups, that is the monocotyledon and dicotyledon. Mono means one. So जहाँ पे जो बीज जो सेपरेट नहीं होते हैं टू इक्वल पार्ट्स में या वो एक सिंगल सीड होती है उसको बोला जाता है मोनोकोटिलेडॉन। डाई मीन्स टू, मीन्स जिसमें अगर हम सीड को, जैसे हम सेंगदाना ले या मटर का दाना ले, तो हम उसको अगर ओपन करते हैं तो वो टू इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, खुल जाता है, या टू इक्वल पार्ट्स उसके सेपरेट होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डाइकोटिलेडॉन। अभी क्रिप्टोगैम्स की तरफ आते हैं। सब किंगडम क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम में जो नॉन फ्लावरिंग है इसके तीन पार्ट्स है, जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। नाउ फिनोरोगैम्स जो पेज नंबर 78 पे दिया है आपके बुक में, वो फ्लावरिंग प्लांट होता है। अभी फ्लावरिंग प्लांट मीन्स यहाँ पे जो प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के वजह से होता है। जहाँ जहाँ जो जो फ्लावर पौधों में प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, दैट फ्लावर इज द मेजर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दैट प्लांट। सो प्लांट विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर for reproduction and produce seeds are called phenerogams. Okay.
तो जो जहाँ पे रिप्रोडक्शन का जो स्पेशल स्ट्रक्चर है और जहाँ पे सीड्स आते हैं वो फिनोरोगैम रहते हैं। जैसे हमने देखा है जिस झाड़ को फूल आते हैं उसको फूल में फ्रूट भी आता है और फ्रूट होने की वजह से उसमें सीड्स होते हैं, तो ये कौन से ग्रुप में आ गया? फिनोरोगैम। इन दिस प्लांट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म विच कंटेन द एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें सीड फॉर्म होते हैं, सीड निर्माण होते हैं और उसमें क्या होता है? एम्ब्रियो और एंड स्टोर्ड फूड रहता है। अभी जब जर्मिनेशन होता है, जब सीड ग्रो होने लग जाता है, तो जो स्टोर्ड फूड होता है उस फ्रूट में, तो वो एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए उसका हेल्प लिया जाता है, या स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। जब ये सीड जर्मिनेट होता है तो उसको ग्रो होना है, उसको बढ़ना है, तो उसको तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत लगेगी, तो वो कहाँ से मिलता है? वो जो भी स्टोर्ड फूड रहता है वहां से। डिपेंडिंग अपॉन द वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट और नॉट, फिनोरोगैम्स आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अभी हमने पहले ही देखा था कि जो फिनोरोगैम है वो फ्लावरिंग प्लांट है और उसके दो भाग है, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। तो जो फ्रूट अंदर है और जो फ्रूट बाहर है उसके बेसिस पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या किया है? डिवाइड किया है। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के झाड़ कैसे होते हैं? बहुत ऊंचे होते हैं, हरियाली होती है और पूरे साल भर ये पौधे या ये झाड़ कैसे रहते हैं। रूट्स एंड स्टेम्स आर वुडी। इसके जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती है, वो जड़ें कैसी होती है? बहुत हार्ड रहती है, टफ रहती है, और जो उसका स्टेम होता है वो भी कैसे रहता है? स्ट्रॉन्ग एंड टफ, हार्ड रहता है। उसकी जो लीव्स होती है वो नीडल शेप होती है, जैसे नीडल शेप है ना, जो सुई की नुकीली टाइप की रहती है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए वस्कुलर टिश्यू यानी कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कोन्स विथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अभी इस प्लांट में अगर रिप्रोडक्शन होना है तो ये जो आपको ये पिक्चर में जो ब्राउन कलर के आपको कुछ कोन्स दिख रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि हमको बाहर से दिख रहा है। ओके, नेकेड सीड इन फीमेल कोन्स। और इसके जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज्ड नहीं होते, मीन्स वो अंदर नहीं होते, वो बाहर की तरह होते हैं और उसके वजह से उसमें कवरिंग नहीं है। और उसमें कवरिंग नहीं है इसलिए ये क्या करता है? इसमें फ्रूट्स नहीं आते हैं। दे डोंट बियर फ्रूट एज द सीड्स हैव नो कवरिंग। उसमें सीड्स में कवरिंग नहीं है तो उसमें फ्रूट्स भी नहीं आते। ड्राई प्लेसेस, दे आर सीन ऑन अ ड्राई प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल्स आर साइकस, क्रिसमस ट्री, थूजा, पाइनस, देवदार। These are the main examples of gymnosperm. Now we will switch on for angiosperm. Angiosperm means covered seeds. Angiosperm का एंजियो का मीनिंग क्या है? जिसकी सीड अंदर में है, या covered seed. Have flowered. This angiosperm bear flowers. Okay? उसमें flowers आते हैं और फ्लावर्स होने की वजह से उसमें फ्रूट्स आते हैं और फ्रूट्स होने की वजह से उसमें क्या होता है? सीड होता है। लीव एवरीवेयर, ये सारे ये फ्लावर्स हमको हर जगह पे दुनिया में देखने मिलता है। इस पृथ्वी पे हमको ये फूलों वाले झाड़ हमको काफी जगह पे बहुत मात्रा में देखने मिलता है, इसलिए उसको डोमिनेंट प्लांट इन द वर्ल्ड कहा गया। वो ज्यादा प्रभावशाली हमको हर जगह पे जब दिखता है, सो दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। नियर अबाउट 260,000 species are there in plant kingdom, that is about 88%. Angiosperms are the most successful and advanced plant on earth. इस पृथ्वी पे एंजियोस्पर्म यानी ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमको सक्सेसफुल और एडवांस प्लांट करके हमको देखने मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल है मैंगो।
Gymnosperm is divided into two parts, that is the monocotyledon and dicotyledon. अगर ये जिम्नोस्पर्म है तो ये अगर फिर से कितने भागों में डिवाइड हुआ है? Sorry, angiosperm is divided into two main parts, that is the monocotyledon and dicotyledon. So angiosperm is divided into monocotyledon and dicotyledon. So here are the characteristic of monocotyledon. जो सीड होती है वो उसका डिवीजन नहीं होता है, टू इक्वल पार्ट में नहीं होती है, इसलिए वो एक सिंगल सीड होती है, वन सीड लीफ. देन लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन. अगर उसकी पत्तियां देखो तो उसकी पत्तियां ऐसे लंबी लंबी सीधी सीधी होती है और उसकी जो अंदर की जो लाइंस होती है वो भी पैरेलल दिखती है. हर्बेशियस प्लांट, ये बहुत बड़ा पौधा नहीं है, ये हर्ब होता है, एक छोटा सा पौधा होता है. फाइब्रस रूट, उसका जो रूट या जड़ें जो है वो फाइब्रस होती है, एक लाइक अ बंच. ओके. देन वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड. अगेन दे हैव अ कंडक्टिंग टिश्यू विच इज स्कैटर्ड, यानी बिखरे हुए. फ्लावर पार्ट्स आर इन मल्टीपल ऑफ 3. उसमें जो पेटल्स होते हैं फ्लावर में, जो पंखुड़ियां होती है वो 3 नंबर में होती है, जिसको ट्राइमेरस भी बोला जाता है. द स्टेम्स इट लुक, जो उसके जो बूंदा होता है या जो स्टेम होता है, दैट लुक्स लाइक अ स्टेम, बट वो स्टेम नहीं होता है, वो अंदर से पूरा खोखला होता है, जिसको हॉलो स्टेम भी बोला जाता है. पेटल्स आर ट्राइमेरस, दैट इज 3 पेटल, 3 नंबर अगर आया तो वो ट्राइमेरस हो गया. उसका वेनेशन पैरेलल वेनेशन. एग्जाम्पल मस्टर्ड, मेज, बैम्बू, दीज आर द एग्जाम्पल्स. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोटिलेडॉन, जहाँ पे सीड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. अगर आप साइड वाले पिक्चर में देखो नीचे के साइड में, तो आपको 2 कॉटिलेडॉन्स, जो बीन शेप जो दिख रहा है वो 2 कॉटिलेडॉन्स है. तो जैसे मटर का दाना है या चौलाई है या चना है, ग्राम या देन पी. सो इफ यू try to open it, you will find 2 equal cotyledons, 2 equal size and shape of cotyledons. So these are called dicotyledon. So 2 cotyledons. टैप रूट सिस्टम, इसमें कैसा है? टैप रूट सिस्टम है, जो कि जिसको हम क्या बोले जाते हैं? टैप रूट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रूट सिस्टम. Okay, then the flower part is multiple of 4 or 5. जो फ्लावर रहता है उसकी जो पेटल्स होती है, यानी पंखुड़ी होती है, आप यहाँ पे सदाफूली का यानी पिंक का रोजिया का विन का रोजिएसी वो आप देख पा रहे हैं. और यहाँ पे उसकी पंखुड़ी कितनी दिख रही है आपको? 5 दिख रही है, 5 या 4. अगर 5 है तो पेंटामेरस, 4 है तो टेट्रामेरस. इसमें वैस्कुलर सिस्टम अरेंज होता है जो कि रिंग लाइक शेप में होता है, स्ट्रक्चर में होता है. लीव्स आर विद ब्रांचेस, वेंस. उसकी जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, पत्ता होता है उस प्लांट का, अगर उसको आप केयरफुली देखें तो उसमें आपको काफी ऐसे रेशे टाइप दिखता है, ब्रांचिंग टाइप दिखता है, उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है. ओके. देन in this picture you can see the difference between the monocotyledon and dicotyledon. तो monocotyledon में हमको उसका रूट सिस्टम दिख रहा है और डाइकोटिलेडॉन में हमको रूट सिस्टम दिख रहा है कि मोनोकोटिलेडॉन में उसका फाइब्रस रूट है और डाइकोटिलेडॉन में टैप रूट है. आप सीड कोट देखो, आपकी लीव्स देखो, यहाँ पे मोनोकोट में आपको पैरेलल दिख रहा है, इसमें डाइकोटिलेडॉन में आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिख रहा है. सो आप वो पत्ती का मीन्स वो झाड़, जो भी झाड़ रहेगा उसकी लीव से, उसकी सीड से आप बोल सकते हैं कि उसका रूट कैसा है. आपको रूट वो प्लांट को बाहर निकाल के देखने की जरूरत नहीं है. बाय दिस कैरेक्टर्स ओनली you can identify whether it is a fibrous root or it has a tap root. Okay, now we will come to the cryptogam. The another group is cryptogam. Cryptogam refer to the seedless plant or plant like organism.
जो क्रिप्टोगैम्स है इसमें सीड्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको सीडलेस प्लांट कहा गया है. It is the subdivision in the kingdom Plantae called cryptogamy. Okay, उसको cryptogamy also बोला जाता है. The major characteristic of cryptogamy is that they do not produce flower, seeds or fruit. उसमें फूल नहीं आते हैं तो उसमें फल नहीं आता है, और फल नहीं आया तो उसमें सीड्स नहीं होते. They consist of hidden reproductive organ. उसका जो reproductive organ है वो अंदर में कहीं तो भी अंदर में छुपा रहता है. एंड मेनी प्लांट बॉडीज ऑफ क्रिप्टोगैम आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट. तो इसके जो लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, वो बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं रहते. बहुत क्लियरली वो हम उसको बोल नहीं सकते कि ये लीफ है या ये स्टेम है या ये रूट है. वो एक दूसरे में कहीं तो भी मिक्स होते हैं, या वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इट वेरी क्लियरली. मेनी ऑफ देम दे डू नॉट हैव वस्कुलर सिस्टम एज वेल. उसमें इवन वस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता है, यानी कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है वो उसमें उतना क्लियरली नहीं दिखता है. द सब किंगडम क्रिप्टोगैमी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फाइला. जो सब किंगडम है क्रिप्टोगैमी, ये 3 फाइला में डिवाइड हुआ है, और वो है फाइलम थैलोफाइटा, फाइलम ब्रायोफाइटा एंड फाइलम टेरिडोफाइटा. तो हम एक एक करके ये फाइलम्स देखेंगे. सो हियर इज द डिवीजन 1, थैलोफाइटा. इट इज मेंशन ऑन पेज नंबर 76. दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वाटर. ये जो वनस्पति है या ये इस टाइप की जो प्लांट्स होते हैं ये जनरली पानी में ग्रो होते हैं. This group of plants which do not have specific parts like root, stem, leaves, flower but are autotrophic due to presence of chlorophyll is called algae. जैसे हमने basis of classification देखा था और उसमें देखा था presence और absence of organs ना, तो वो presence और absence of organs, तो यहाँ पे वो पॉइंट लागू होता है कि रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स जो है यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश नहीं किए हैं. बट इसमें ऑटोट्रॉफिक ये क्वालिटी हमको देखने मिलती है या कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलता है बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और उस वजह से वो खुद का खाना खुद बनाता है, और उसका एग्जाम्पल है अलगी. अलगी शो ग्रेट डाइवर्सिटी. बहुत किस्म के, बहुत प्रकार के अलगी देखने मिलते हैं. उसमें से कुछ अलगी दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, माइक्रोस्कोपिक और लार्ज. तो उसमें से कुछ अलगी यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल होते हैं, कुछ मल्टीसेल्युलर यानी मेनी सेल वाले होते हैं, कुछ इतने छोटे होते हैं कि हमको उसको लेंस या माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, या कुछ हम अपने आंखों से, खुली आंखों से भी देख सकते हैं. सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर while some are found in saline water. अभी ये जो अलगी है ये कुछ अलगी हमको फ्रेश वाटर में देखने मिलती है, कुछ सलाइन वाटर. अभी ये फ्रेश वाटर यानी क्या, जो पानी बहते रहता है, लाइक रिवर्स, नदियाँ, स्ट्रीम्स, जो पानी के जो झरने रहते हैं वो, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी बहते रहता है, कोई स्टॉप नहीं होता है, तो वो फ्रेश वाटर कहा जाता है. तो ऐसे जगह पे भी ये अलगी देखा जाता है. इवन फाउंड इन सलाइन वाटर. सलाइन वाटर में सॉल्टी वाटर, जैसे पानी जहाँ पे एक जगह पे डम हो जाता है, तो लाइक पॉन्ड्स है, लेक्स है, तो यहाँ पे हमको इस किस्म की अलगी देखने मिलती है. These plants usually have a soft and fiber-like body. Various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. अभी यहाँ पे जो plants है, they are very soft, fiber-like body, है ना, छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमको देखने मिलते हैं, और
ये बहुत सॉफ्ट होती है, अगर उसको हम हाथ लगा के देखें तो बहुत सॉफ्ट होती है। इसमें फंगी जो ग्रुप है या फंजाई जो ग्रुप है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, बट जैसे ईस्ट और मोल्ड्स आर द एग्जाम्पल, बट उसमें क्लोरोफिल नहीं है, बट स्टिल दे हैव बीन इंक्लूडेड इन ग्रुप और इन डिवीजन वन दैट इज थैलोफाइटा. Examples are algae or Spirogera, Ulothrix, Ulva, Sarcasm. These are the examples for Thallophyta. So you can see in the picture how you can see the filaments of the algae, Spirogera, Ulothrix and Eudogonium. So ये है उसके कुछ examples. Now we'll come to Bryophyta, division Bryophyta, which is also on page number 76. This group of plant is called the amphibians of the plant kingdom because they grow in moist soil but need more water for reproduction. अभी ये जो एम्फीबियन आपने एनिमल सुना होगा, पर एम्फीबियन प्लांट्स भी होते हैं जो कि जमीन पे भी होते हैं और जो कि पानी में भी होते हैं, तो ये एम्फीबियंस बोला जाता है. एंड दे ग्रो मोस्टली इन मॉइस्ट सॉइल, जहाँ पे जो ज़मीन है या जो मिट्टी है थोड़ी सी ऐसी गीली टाइप रहती है, वहाँ पे मॉइस्ट सॉइल में ये ग्रो होता है, बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. पर जब इसको रिप्रोडक्शन होना है तो उसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है. दीज प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टी सेल्यूलर एंड ऑटोट्रॉफिक. ये थैलॉइड है, जैसे हमने थैलस में देखा है, थैलोफाइटा में देखा है, उसी प्रकार के थोड़े थोड़े होते हैं. मल्टी सेल्यूलर होते हैं, अनेक सेल से बने होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक मीन्स इसमें क्लोरोफिल है इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक है. दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. आपने कभी जैसे आपने फ्यूनेरिया या मॉस देखा होगा या मार्केंशिया देखा होगा, तो उसमें आपको छोटे छोटे स्पोर्स दिखते हैं. कहाँ पे जो लीफ होती है, लीफ के नीचे के साइड में हमको पर्टिकुलरली देखने मिलते हैं, तो उस स्पोर से ये रिप्रोड्यूस होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज फ्लैट. जो ब्रायोफाइटा होते हैं उसका बॉडी प्लांट कैसा होता है, प्लांट बॉडी कैसे होता है, फ्लैट होता है और चपटा होता है, रिबन लाइक लॉन्ग, रिबन के समान लंबा होता है, विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स. और उसमें भी हमको रूट स्टेम और लीव्स बहुत क्लियरली नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते. इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट्स लाइक राइजोइड. पर उसमें जो लीफ होता है वो स्टेम लाइक और लीफ लाइक उसका पार्ट्स दिखते हैं, या राइजोइड्स टाइप रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. They do not have specific tissue for conduction of food and water. उसमें conducting special tissue नहीं होते हैं. Examples are moss, funaria, markensia, rixia, etc. Now comes to pteridophyta. Plants for this group have well developed root system, root, stem and leaves. तो इसमें ये जो pteridophyta जो है, इसमें प्लांट में खासियत है कि इसमें रूट्स, स्टेम एंड लीव्स कैसे है, एकदम क्लियरली हम उसको देख सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. और इसमें जो कंडक्शन के लिए जो भी पानी टिश्यू होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. बट दे डू नॉट बेयर फ्लावर एंड फ्रूट्स. पर इसमें फ्लावर्स भी नहीं आते हैं और उस वजह से उसमें फ्रूट नहीं आते. They reproduce with the help of spores formed along the back or posterior surface of their leaf. अगर आप उसके लीफ देखें, इस किस्म के जो झाड़ होते हैं और उसकी जो अगर लीफ देखें, तो उनके नीचे के साइड से आपको छोटे छोटे राई के दाने समान कुछ स्पोर्स दिखते हैं. एंड these spores are helpful for the reproduction. So these plants reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. They have a well developed conducting system. Examples are fern like Nephrolepis, Marsilia, Petris, and these are the examples for the Pteridophyta. Now we have a question for you. What is the similarity between the
plants of the group Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. अभी तक आपने Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta देखा, तो इनके जो स्ट्रक्चर है और उनके इसमें क्या सिमिलरिटीज है या क्या डिफरेंस है, ये आपको आपके नोटबुक में 3 कॉलम्स बना के आपको लिखना है. ओके. Now here I have given you some exercise which is already given in your notebook, textbook, but जिनके पास textbook नहीं होगे they can copy down from here. Okay, so this is the match the column. You need to do it, then fill in the blanks, then answer the following in your own words, and here is again a video for you.